Okay, beta. A, a very good evening to each one of you. Myself, Karam Patel from UK. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, Guruji ke Saath Guruvar 2.0, that we started on 10th of April 2025 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. Would like to share a few words about PHF. PHF Promise Alone Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat Namole sir with the vision to educate homeopaths and to transfer GPs towards homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach the maximum homeopaths who are not able to practice homeopathy due to lack of proper guidance. Ignited Minds by PHF is a pioneer group for free learning of homeopathy, first started on WhatsApp and then on Telegram. Now about 3,000 doctors are learning daily on Telegram group. Recently, we completed free webinar series of 100 lectures on Zoom, which was available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. And now we are sharing a new series of lectures, What Women Wants, to explore a woman's heart, emotions, need to be able to heal her. We have already shared few emotions in past 24 lectures, and today we are exploring another emotion with a case study in session number 152. I feel honored to welcome and introduce today's speaker, Dr. Manasi Patel from Kolhapur, Maharashtra. Ma'am passed her BHMS in 2003 from Shrimati Venutai Yashwantrao Chavan Homeopathic Medical College, Kolhapur. Having experience of clinical practice of 22 years, practicing homeopathy since last 10 years. Dr. Manasi has deeper understanding of rubrics, famous for her daily sharing of rubrics on various platforms like WhatsApp, Insta, Telegram, and Facebook with thousands of followers. So welcome Dr. Manasi Patel. Over to you. Yes, over to you, Bachchan of PHF. Thank you. Thank you, Karam, for lovely and warm welcome. Let us start the session. Thank you. I would first like to pay my gratitude to my guru, my mentor, friend, Dr. Liaquat Namole sir, who has given us the confidence to share whatever we learn on everyday basis. So thank you, sir, and thank you everyone for joining today's session. We have started this new series that has come from visionary mind of our Guruji Dr. Liaquat sir. What women want to explore the woman's heart, to able to understand the feelings, the emotions a lady has in her mind, so that we can be able to help her to heal her. Okay, so coming to today's case, I have a very short case, but I just want to say one more thing that when we have started, we have already gone through 24 emotions, 24 different emotions, and through sessions, we have studied many emotions of a woman, what she really wants from herself, from her family, from her environment. So today is also a case of a lady which we will understand the emotion. It is not that we can understand the remedy easily, we can understand the rubrics easily, but the point to take note of is to we have to understand the patient first, because we try to, what we do in homeopathy, we treat the person and not the sickness. So that so let us understand today's case. Let me share the screen. Is it visible? Yes, ma'am.
Okay, so this is the case. She is a lady of 40 years. एक्चुअली ये केस मतलब केस टेकिंग बहुत लंबा था, ये मैंने उसका क्रक्स हिस्ट्री का लिखा हुआ है। तो ये लेडी है, 40 इयर्स की है, और उसके फेस पे बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे। तो उसके लिए शी केम टू मी। इसके पहले भी वो आ चुकी थी, लेकिन वो टाइम पे मेरा प्रिस्क्रिप्शन शायद गलत हो गया, तो शी केम अगेन। एंड वो टाइम पे जो बातें उसने मेरे साथ शेयर नहीं करी थी, तो वो इस विजिट में उसने बहुत सारी बातें मुझे बता दी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसकी हिस्ट्री में है। तो शी इज अ ग्रेजुएट, और उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई, और उसको जॉब करनी थी। तो जॉब करने को, लेकिन उसकी जो जेठानी है, शी वॉज डूइंग द जॉब ऑलरेडी। तो उसकी सास ने, ससुर ने कहा कि तुम जॉब मत करो, तुम घर पे रहो और घर संभालो। ठीक है, तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो मन में रह गया। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के बाद, मतलब बहुत सारे दिन के बाद, सालों के बाद सेपरेशन हुआ उनका फैमिली का। मतलब झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो लोग सेपरेट हो गए ड्यू टू मतलब बच्चे का एजुकेशन वगैरह, ये कुछ चीजें थी, तो उसकी वजह से वो लोग सेपरेट हो गए। तो सेपरेट होके यहाँ पे शी एंड हर हस्बैंड एंड हर सन, ये तीन लोग ही वहां पे रहते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके हस्बैंड जो है, तो उनको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो अपने काम में ही लगे हुए हैं दिन से। मतलब ही गोज इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कम्स लेट इन द नाइट, एंड होल डे ही स्पेंड्स एट हिज वर्क प्लेस। और उसके बाद वो जब भी घर पे भी आते हैं, तो वो मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन ही नहीं है। और सब काम चल रहा है, मतलब जैसे मैकेनिकल होता है, वैसे वो सब उनकी डे टू डे लाइफ रूटीन जो है, वो चलता जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा एक लगाव जो होता है, वो नहीं रहा है। तो वो मतलब हस्बैंड को पूछती है कि आप व्हाई यू बिहेव विथ मी लाइक दिस। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मुझसे कुछ मत करो कि टाइम मैं तुम्हें दूंगा, कुछ रोमांस होगा, कुछ ये होगा। तो वो चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें मुझे अभी कुछ मतलब दिलचस्पी नहीं है। ओके, तो नहीं चाहता हूँ मैं कि ऐसा कुछ, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो यू कैन गो। मतलब मैं डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ चेंज मुझ में नहीं आने वाला। मुझसे उम्मीद मत करो तुम, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है नहीं रहो। तो मैंने बोला तो फिर आप क्यों नहीं डिवोर्स क्यों नहीं लेते हो फिर। तो बोली कि मैं अभी डिवोर्स लेके क्या करूंगी, अभी इतनी एज भी हो गई है, एक बच्चा है, उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी, उसकी पढ़ाई है। और पहले तो मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन वो टाइम पे मुझे जॉब करने को नहीं मिला। लेकिन अब क्या है कि उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है मुझ में, मैं कैसे फाइनेंसेस वगैरह कैसे मैनेज करूंगी। और फिर मैं वापस अपने मैटरनल हाउस में, पेरेंट्स के घर पे भी नहीं जा सकती, कैसे जाऊंगी ना। क्या मतलब लोग क्या बोलेंगे, फिर उनकी भी कुछ लाइफ होती है। तो वहां पे जाके अभी एडजस्ट होना, वो भी मुश्किल चीज है। तो वहां पर भी मैं नहीं जा सकती। तो अभी क्या करूं मैं, आप कुछ ऐसे मेडिसिन दे दो मुझे कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और दूसरी एक चीज उसने बोली कि ऐसा मतलब जैसे हस्बैंड का कुछ मन नहीं है, कुछ दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई डिजायर ही नहीं है उसके प्रति। तो वो बोलती है कि मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करती थी कि मेरी डिजायर चली जाए, ताकि अ, मतलब ये डिजायर ही ना रहे, तो फिर मैं ऐसे ही रह लूंगी। मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, और अभी डिजायर है भी नहीं कुछ। तो मैं पहले जब से उनका ये बिहेवियर चेंज हुआ है, तो मैं तब से वो गॉड को प्रे कर रही हूँ कि ऐसा हो जाए कि वो डिजायर ही ना रहे, कुछ सेक्सुअल डिजायर ही ना रहे, वो रोमांटिसिज्म, वो सब चीजें की जरूरत ही ना पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, उसकी वजह से उनको मैं अच्छी नहीं लगती।
तो मैंने उनको पूछा भी है कि कुछ आपका अफेयर वगैरह है क्या। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो बोलते कि हाँ मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो समझ में आता है एक वाइफ को, बस बस समझ में आता अगं है। आता तू अभ्यास नाही केलास तर मी तुला पूर्ण हे करणार आहे बोलायचं बंद करणार आहे तुझ्याशी. हेलो, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, ठीक है। और उसको घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है। वो पहले शादी के पहले घूमने फिरने भी जाती थी, लेकिन अभी उसका मतलब फ्रेंड्स है तो वो जाती नहीं है किसी के, इवन जो रिलेशन, मतलब वो जो रिलेटिव्स के यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन में भी जाना उसको अच्छा नहीं लगता, वो जाती नहीं है किसी भी फंक्शन में। दूर दूर वो मतलब जितना हो सके उतना अवॉइड करती है। कहाँ पर घूमना जाना है, किसी फ्रेंड के साथ बात करनी है, वो भी नहीं करती है वो। उसको सिर्फ ये है कि नहीं जाना है मुझे, मुझे किसी को मतलब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं ना कि क्या हुआ तुम्हें, चेहरा ऐसा क्यों है तुम्हारा, या फिर ऐसे क्यों दिख रही हो वगैरह, ये चीजें होती है। तो इसके लिए उसने जाना बंद कर दिया है किसी भी फंक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द केस, ये क्रक्स बता दिया मैंने आपको। अगर आपको और कुछ जानना है, पूछना है, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं केस को। सिंपल केस है। समझ में आया केस? हेलो। Yes, ma'am. Yes. सो लेट अस अंडरस्टैंड द लेडी एंड जो भी आपको समझा है आप बोल सकते हो, जिसको भी बोलना है प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। बहुत ही इजी केस है, लेकिन इसके पीछे जो फीलिंग है वो आज हम देखेंगे। ये केस मैंने सर के साथ जब भी डिस्कस किया उसके बाद मुझे वो बियॉन्ड वाला फीलिंग समझ में आया। तो पहले हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं और फिर सर के इनपुट्स लेंगे। यस, बोलना है किसी को? हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। मैम जितना समझा उससे ना, ये पहले तो एक एम्बिशियस लेडी थी, जॉब करना चाहती थी, लेकिन आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट में जो जहाँ गई उस हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। बाद में एटलीस्ट शी वाज एक्सपेक्टिंग, एक थोड़ी अच्छी सेंटिमेंटल लेडी लग रही है कि हस्बैंड का एक अफेक्शन चाहिए, नॉर्मल है, नेचुरल लग रही है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई है। और अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, सेल्फ डेप्रिसिएशन थोड़ा दिखा मुझे इसमें। और वो ऐसे चेंज होना चाहती है, इतना चेंज होना चाहती है कि इसकी भी इच्छा उसके हस्बैंड के जैसी हो जाए तो दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर सके। तो वो उतना ये फ्लेक्सिबल बोलो या ऐसे होना चाहती है, लेकिन थोड़ा ये भी कम है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो ये है उसका स्किन का ब्लैक स्पॉट्स है ना, तो वो हाँ, तो उससे वो थोड़ी एम्बेरस भी फील कर रही है, थोड़ा लव डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा, तो मैंने ये लिया है सेंटिमेंटल delusion, he or she is neglected, confidence, want of self confidence, self depreciation and reserved लगा, and elements carry desire to be, कि आप मुझे ऐसे कर दो कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं मेरे हस्बैंड के साथ, कि मुझे कुछ मन में इच्छा ही ना रहे और डिसअपॉइंटमेंट भी ना मिले आगे। तो मैम मेडिसिन तो मेरी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये थोड़ा नेट्रम ग्रुप लग रहा है, नेट्रम कार्ब या नेट्रम म्यूर। थैंक यू। यस। नटरम के जैसे लग रहा है ना? हाँ, यस। बहुत बढ़िया, बढ़िया एनालिसिस किया आपने।
और उसका फॉलोअप मैं बताऊँ, तीसरे दिन मैंने उनको बुलाया था। तो तीसरे दिन शी केम विथ हर सन, और उन्होंने बोला कि मुझे इतना फ्रेश लग रहा है, मतलब आज तक मुझे कभी इतना, मतलब इतने सालों से जो था अंदर भरा हुआ, वो निकल के आया। और वो फ्रेश, इतनी फ्रेश, मतलब उसके स्माइल से ही पता चल रहा था कि कितना फ्रेश लग रहा है। और उसने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से उनका चल रहा था जाने का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो फाइनली शी एग्रीड टू गो। एंड उसने बोला कि मुझे ट्रैवल के लिए भी कुछ मेडिसिन दे दो, तो मुझे वहां पे जाके कुछ तकलीफ ना हो। सो दिस वाज द फॉलो अप। यस, और कोई? करम, आप बताओ। आई फील सेम जैसे डॉक्टर मीता ने अभी मेंशन किया, सेम उसने अपने आप को ही अंदर अंदर शी स्किल्ड हरसेल्फ सिमिलरली जस्ट टू गेट अलोंग अपना बचाने के लिए फैमिली लाइफ। तो यू आर आल्सो विथ नेटरम यू, या फिर नेटरम ग्रुप? हाँ जी, डेफिनेटली। अंकुश? हेलो मैम। हेलो। मैम, अकॉर्डिंग टू केस मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जो हस्बैंड उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया था, नेग्लेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड। फिर उसके वो अपने उसका एक बेटा है, तो उसको टेंशन था कि वो आगे फाइनेंशियल कैसे वो करेगी, तो एनजाइटी चिल्ड्रन अबाउट एंड एनजाइटी फ्यूचर अबाउट लिया। फिर उसको कहीं बाहर जाना नहीं पसंद था, वो अवॉइड करती थी कि लोग पूछेंगे तो क्या वो बोलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है माइंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। और वो अपने घर मतलब वो अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी। अ, तो यहाँ पे मैंने लिया है उसको एक फियर है कि ह्यूमिलिएटेड, मतलब वो जो भी आसपास के लोग हैं वो फील करेंगे। बस मैम, मैंने इतना ही डिकोड कर पाई हूँ। ओके, क्या रेमेडी है आपकी? मैम, मुझे तो मेन जो आ रहा है वो पल्सिटिला है। ओके। ओके। पल्सिटिला मैंने भी पहले सोचा था, और शायद मैंने पहले उसको पल्सिटिला ही प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि वो जो बातें घर की होती है ना, मतलब देवरानी जेठानी वाला झगड़ा है, या फिर सास के साथ जो भी है, या फिर उसका जो ओवरऑल ये है कि देखो मैं कैसी दुखियारी हूँ, है ना। तो वो चीज, मतलब पिटीज हर सेल्फ करके पल्सिटिला सोचा था मैंने भी। ओके मैम। पल्सिटिला हेलो। से ही कुछ हो। यस, हाँ, अंकुश? delusion neglected by husband her स्ट्रेमोनियम हो सकती है। ओके, लेकिन इसका फिर एक ही आएगा ना, हाँ, निग्लेक्ट। एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक को थोड़ा सा होलिस्टिक चाहिए ना अपने को, मतलब सारी चीजें कवर होनी चाहिए उसमें। हाँ स्ट्रेमोनियम का जो है एस्केप है, वो भी बिकॉज ऑफ फियर है ना। हाँ। तो यहाँ पे किस चीज का उसको फियर है? नहीं, फियर इतना ज्यादा मार्क नहीं है ना। नहीं है। हाँ, तो डिस्क्लोज करते हैं। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सबने लिया ना? ऑल एग्री विद दैट रूब्रिक? यस मैम। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो तो पहले ही लिया मैंने। निग्लेक्टेड बीइंग, ये भी लिया। उसका कोई से है क्या फैमिली में? जब भी जॉइंट फैमिली में थी, या फिर अभी सेपरेट भी है, फिर भी कुछ है क्या उसका? नहीं है, नहीं है। और शी वो, इज नॉट एबल टू से एंड नहीं हाँ, है। और वो बोल भी नहीं पाती है ना
क्या है, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, वो नहीं बोल पाते ना वो। तो इसको सप्रेस करती है। और ये पूरा आप समझो, उसको एक लेडी को आप इमेजिन करो कि शादी के 10-15 साल के बाद में अगर ऐसी सिचुएशन में वो आ जाती है कि वो आगे भी नहीं जा पा रही है, पीछे भी नहीं जा पा रही है, मतलब पेरेंट्स के घर पे अपने इंडियन सोसाइटी में या फिर इंडियन सो कॉल्ड कल्चर में बोलते हैं कि एक बारी शादी हो गई तो उसकी आरती ही वापस आनी है। तो व्हाट इज दैट, मतलब ये जो बिठाया गया है दिमाग में अपने, तो ये चीज क्या है, मतलब उसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो चीज, उसको हम क्या समझते हैं, वो क्यों नहीं जाना चाहती। मैंने उसको डिवोर्स का भी पूछा, अगर हस्बैंड बोल रहा है डिवोर्स लेना है तो आप क्यों नहीं अपने, मतलब शी इज अ ग्रेजुएट और बहुत अच्छी है, मतलब दिखने में भी वो, उसका फेस एकदम राउंड फेस एंड शी इज गुड लुकिंग, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब उसका खराब चेहरा है या फिर वो कुछ कर नहीं पाएगी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो फिर भी नहीं जाना चाहती है, वापस नहीं जाना चाहती है, वो यहाँ पे रह के फिर भी वो क्या सोच रही कि ऐसा हो जाए कि मैं मतलब वो डिजायर भी चली जाए ताकि मैं हस्बैंड को उसके साथ रह सकूं, मतलब इतना वो उसका क्या बोल सकते हैं, डीप फीलिंग है वो। इसको बिहेवियर कैसा बोलते हैं, ये जो बिहेवियर है? सेल्फलेस, सेल्फलेस। प्लेस। और एक बहुत अच्छा रुब्रिक है जो ये डिफाइन करता है लेडी को, उसके उसका जो जर्नी है, पूरी जर्नी है, एक रुब्रिक में आ जाती है, जो कि बचपन से ही हम्म, छोटे मतलब लड़कियों के ऊपर वो थोप दिया जाता है ना, यू हैव टू बिहेव इन दिस वे। थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे। और एक चीज है वो सेल्फ डिनाइल, पा रही, सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल। ओके, डिनाई नहीं कर पा रही है ना, डिनाई नहीं कर रही है वो, खुद को डिनाई नहीं कर रही है वो। सेल्फ डिनाइल में क्या होता है? सेल्फ डिनाइल में खुद को ये करती है ना, वो खुद को पीछे रखती खुद को है। पीछे, हाँ, या फिर सप्रेस इमोशन। हाँ सप्रेस कर सकते हैं। और एक चीज है, खुशी से जी पा रही है क्या वो, कैसे जी रही है वो? सब अपनी खुद की इच्छाएं मार के जी रही। मार के जी रही है, मतलब मन मार के जी रहे है ना, यस। तो उसको क्या बोलते हैं? जीते जी मर गई है ना, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। एग्रीड? यस। यस। और एक रुब्रिक जो मैं बोल रही हूँ कि उसको क्या बनना है, एक आदर्श पत्नी बनना है ना। तो कौन होता है अपने मटरिया मेडिका में आदर्श पत्नी? आइडियलिस्टिक। यस, आइडियलिस्टिक। इग्निशिया। एग्जैक्टली। तो ये लोग आइडियलिस्टिक मतलब क्या? आदर्शवादी। आदर्शवादी मतलब जो कि उसके आदर्शों पे चलते हैं ना वो, मतलब आदर्श एक पत्नी कैसे होती है अपने इसमें भारतीय संस्कृति में डाल के रखा है ना, कि जो पति की सेवा करे, ससुराल वालों की सेवा करे, अपने आप को पीछे रखे और बाकी सारे परिवार की जो भी इच्छाएं है वो पहले देखे, फिर अपना सोचे या ना सोचे। तो दैट इज आइडियलिस्टिक बहू, या फिर क्या बोल सकते हैं, आदर्श, आदर्श बहू होती है ना। सो आइडियलिस्टिक ये भी लिया था मैंने। और इग्निशिया सिर्फ 30 दिया था उनको, तो 30 से और इसमें ये भी आता है डिल्यूजन, मैरिज मैरिज ही मैरिड, ये भी रुब्रिक। हाँ, लेकिन वो तो मैरिज में तो है ही ना वो,
हाँ मैरिज में ही है ना, अगर वो नहीं होती या फिर वो डिलीजन में हम ले सकते थे। हाँ शी इज इन मैरिज ना। हाँ और एक जो बहुत मतलब इसके बियॉन्ड थिंकिंग अगर हम बोलते हैं, जो सर हमेशा बोलते हैं कि इसके पीछे देखो आप, हाँ, तो एक रूब्रिक है इसमें कंप्लीट रेपर्टरी में, डेलिकेसी फीलिंग ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या है? डेलिकेसी मतलब it refers to an acute sensitivity, deep emotional responsiveness, and a highly refined capacity to appreciate beauty, art, or the emotional states of others. It highlights an individual's ability to experience and understand subtle nuances of emotion that might go unnoticed by others. मतलब इतनी ज्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी इन लोगों में होती है। इसमें दो ही रेमेडीज है, दैट इज इग्निशिया एंड नक्सोवेमिन का। ओके, तो इसके बारे में सर से हम जानेंगे और ज्यादा। ओके, और इसका मीनिंग मतलब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने दिए हैं डेलिकेसी फीलिंग ऑफ की। तो इमोशनल सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी, people with delicacy of feeling are highly attuned to the emotional atmosphere around them. They are perceptive to the moods, body language, and subtle shifts in the behavior of others. This often translates into deep empathy and a strong desire to treat others with utmost care and tact. तो ये चीजें इग्निशिया में बहुत ज्यादा होती है। सो इग्निशिया एंड नक्सोमिका दो ही रेमेडीज है। सो दिस इज all from my side. I would like to request sir to give some inputs. किसी को कोई क्वेरी है? मैम नेट्रम म्यूर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब ये तो एक आदर्श लेडी है, रोल मॉडल जैसा, लेकिन ये चार्ट में नेट्रम म्यूर नेट्रम्यूर आता है। नेट्रम्यूर से ज्यादा ना स्टेफिसाग्रिया आता है इसमें, क्योंकि ये कॉवर्डाइस वाला भी एक रूब्रिक मैंने लिया था, कॉवर्डाइस ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस, है ना। मतलब वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने की उसमें हिम्मत नहीं होती है। तो ये चीज स्टैफ और इग्निशिया में होती है। मतलब उनके अंदर, इग्निशिया के अंदर बहुत ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, फायर अंदर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो कभी कभी ही बर्स्ट होता है। तो नेट्रम नूर विल गो इनटू मोर ग्रीफ, मतलब वो उसमें ड्वेल करके उस पर ही चला जाएगा। लेकिन इग्निशिया अगेन शी इज ट्राइंग टू एडजस्ट, ट्राइंग टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। मतलब उसको अभी भी वो है कि मैं यहीं पे रह के ये मतलब ये करना है मुझे ये सारी चीजें। तो वहां पे नेट्रमूर क्रॉनिक है इसका, इग्निशिया का। शायद आगे चल के नेट्रमूर की जरूरत भी पड़ सकती है। आप अगर इसमें पढ़ो केंट सर का, अपने जेम्स टायलर केंट का बुक में आप पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो वो डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाएगा। इग्निशिया और नेट्रमूर का जो डिफरेंशिएशन उन्होंने दिया है, तो होमवर्क लीजिए आज का। वो जाके आप पढ़िए, मतलब वो जो फर्स्ट पैराग्राफ 2-3 लाइन में ही उन्होंने पूरा दिया हुआ है कि कैसे वो डिफरेंशिएट किया हुआ है इग्निशिया और नेट्रमूर को। एक मिनट मैं see, Ignitia is frequently required and is especially suited to sensitive, delicate women and children, to hysterical women. You will not cure the natural hysterics with Ignitia, but you will cure those gentle, sensitive, fine fibered, refined, highly educated, overwrought women in their nervous complaints with Ignitia,
when they take on complaints that are similar to such symptoms as come in hysteria. मतलब हिस्टेरिया को हम ज्यादातर देते थे, लेकिन हिस्टेरिया भी कौन से लेडीज में उन्होंने बोला है, जेंटल और डेलिकेट और सेंसिटिव इमोशनल, जितने इमोशनल गर्ल्स है। इग्नेशिया का जो ग्रीफ है उससे हम जानते हैं ना, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, मतलब इग्नेशिया वो पुराना नहीं होने देती है ना, एक रूब्रिक है ना उसको। रिसेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ रिसेंट, मतलब वो हमेशा ताजा रहता है, और नेट्रम मूर का जो ग्रीफ है वो ओल्ड रहता है, वो वहां पे ड्वेलिंग वाली चीज बहुत ज्यादा आती है नेट्रम मूर में। ठीक है, यस मैम। और कोई? पूछ लो मैडम, फॉर्म में आज पूछ लो, सब पता नहीं है। Yes. Any questions for me? No questions, no? Thank you. Yes, guys. Delicacy feeling of, समझ में आया क्या delicacy? Naxomica and Ignatia, both are from the same family. I don't know about acute and chronic of Ignatia. There's a difference, remember. वो सब don't indulge into that. Who is acute, who is chronic. Just who was asking to differentiate between Natromol and Ignatia? Better see, instead of differentiating between two remedies, I would suggest you, see, that's a game our mind plays. That is how we were taught in our college, right? But I would suggest you, rather than differentiating between remedies, see what is there in the remedy. Okay, see what is there in the patient, which is there in the remedy. That's it. Instead of differentiation, that is very difficult actually, I'm telling you, because how many rubrics Natromol has? Around 2,000, 3,000 rubrics. Ignatia equal rubrics, you know, more or less. So how will you differentiate? This is there in Ignatia, this is not in Natromol. No, it's not that. It's clear cut कि बाबा ये आइडियलिस्टिक है। देखो वहां तो नाइट्रोमोल है ही नहीं आइडियलिस्टिक, सबसे पहले तो आइडियलिज्म में नाइट्रोमोल है ही नहीं। नाइट्रोमोल डिग्निफाइड में है, उसका इश्यू डिग्निटी का रहता है। इग्नेशिया का इश्यू जो है वो सेंसिटिविटी का है, समझ रहे हो? हिस्टेरिया मतलब क्या है? व्हाट इज हिस्टेरिया ऑफ इग्नेशिया? मतलब दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगी इग्नेशिया के अंदर, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्स आपको मिलेगी एक सेम पर्सन के अंदर। आई थिंक हिपोक्रेसी के अंदर भी इग्नेशिया है, आइडियलिस्टिक में है और हिपोक्रेसी में। कैन यू इमेजिन? तो ये है, ये दिस इज इग्नेशिया, समझ रहे हो? एक बंदा जो आइडियलिस्ट है वो हिपोक्राइट भी है, समझ रहे हो? ये थोड़ा सा आप ध्यान दो इग्नेशिया के अंदर। दिस इज व्हाट यू एंड डेलिकेसी तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। नजाकत, डेलिकेसी वाले लोग जो होते हैं ना वो इवॉल्व होते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा। दे कैन अंडरस्टैंड द सेंसिटिव पॉइंट्स ऑफ द पर्सन, एंड द प्रॉब्लम विद इग्नेशिया arises when it's not reciprocated. The world around is not like what you are. ओके, इग्नेशिया क्या डिल्यूजन मैरिड ना, मतलब क्या एक बार जो कमिट कर लिया तो कर लिया, और वो जब नहीं मिलता है उसको तब उसके पंगे चालू होते हैं इग्नेशिया के। वहां से इग्नेशिया ब्रेक होती, फिर वो हिस्टेरिया में जाएगा, वो वहां पे जाएगा कि मैंने तो तुमको यार, मैंने तेरे साथ जो किया वो प्यार था, तूने मेरे साथ जो किया वो क्या था। ये हो जाता है इग्नेशिया का पंगा। वहां पे इग्नेशिया फिर वो इम्बेसिलिटी निगेटिविज्म में जाएगा, जस्टिस कैन नॉट सपोर्ट इम्बेसिलिटी निगेटिविज्म, फिर अब्यूजिव वगैरह वो सब उधर जाएगा। वो बहुत एक्सट्रीम स्टेट होती है इग्नेशिया की। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, बिकॉज आपने पूछा,
तो बुकिश आपको आंसर दूंगा मैं। अगर आप देखोगे ग्रीफ न्यू एंड ओल्ड, इग्नेशिया में जख्म हमेशा ताजा रहेंगे, नेट्रोबुल में ओल्ड हो जाए। ओल्ड है ना उसके अंदर, आप देख लो एलिमेंट्स ऑफ ग्रीफ न्यू एंड एलिमेंट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ओल्ड एंड न्यू। न्यू मतलब नया नया, न्यू का मतलब क्या है कि अभी का नहीं, फ्रेश नहीं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा सीनियर है, उसके पास में एक क्रेटा है, अभी पहले आई 20 थी, ठीक है। भाई की I-20 12 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर चली थी। मेरी डिजायर 10 साल के अंदर 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। मेरी वाइफ मेरे से 1 साल बड़ी है, मेरे से 10 साल छोटी लगती है। उसकी वाइफ उससे 10 साल छोटी, उससे 10 साल बड़ी लगती है। समझ रहे हो? उसकी गाड़ी अभी भी न्यू लगती है, बीवी वो बुरी हो गई है। मेरी बीवी अभी भी नहीं लगती, गाड़ी पुरानी हो गई है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड। ओल्ड इज लाइक यूज्ड एंड कि बस इतना, वो घिस घिस के गम इतना उसका पुराना हो जाता है कि वो बोलता है मुझे आदत हो गई, वो गम का उसको कुछ लगता ही नहीं है। Whereas Ignatia की ड्यू टू द सेंसिटिविटी, यू कैन कॉल इट ओल्ड सेंसिटिविटी, वो अभी भी वो चीज उसको डिस्टर्ब करती है, जो उसका दिल टूटा है जो है। तो इग्निशिया को पुल आउट करना वहां से बहुत मुश्किल होता है, उस ग्रीफ से या उस डिसअपॉइंटमेंट से पुल आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इग्निशिया। सो दैट इज व्हाट आवर मेडिसिन डज। ये डिफरेंस है। नेचुरल क्योंकि सख्त है ना, नमक है, सख्त हो चुका है, मतलब समंदर में बह के भी समंदर से अलग है ना। तो नमक कैसा होता है, नमक पानी में घुलने के बाद में भी नमक रहता है, लेकिन वो घुला हुआ रहता है उसके अंदर। समझ रहे हो? तो वो अपने आप को फिर वो डिस्पर्स कर सकता है, अपने आप को डिसॉल्व कर सकता है। इग्निशिया डिसॉल्व नहीं होता है, ये फर्क है, ठीक है। एंड डेलिकेसी वाला तो आपको पता है, क्योंकि नाजुक होता है, इवॉल्व होता है, तो वो हर चीज उसकी समझ कर चलता है। डिल्यूजन मैरिड है ना, मैरिड मतलब क्या, कि भाई मैं पूरी तरह आपकी हो चुकी है, मैं समर्पित हो चुकी है। मैरिड इज समर्पित, समर्पित होता है, तो वो मतलब वो इंग्लिशा खुद रहती नहीं, वो इतना उसके पति की या दोस्त की या जो भी है बॉयफ्रेंड की या सास ससुर की, पूरी फैमिली में इतनी वो इन्वॉल्व और घुल मिल गई है, अपने आप को उसने इतना दे दिया है फैमिली को, ठीक है ना, कि वो सेपरेट नहीं कर पाती है अपने आप को सबसे। वो सबकी सेंसिटिविटी, सबकी चीजों को वो समझकर उनको रेसिप्रोकेट करके सबका ध्यान रख के, कई बार इग्निशिया मुझे एपिसमेल जैसी लगती है। अगर आप देखोगे चेकिंग मैटर्स के अंदर, चेकिंग फैमिली मैटर्स के अंदर एपिसमेल है, अगर आप देखोगे कई बार आपको इग्निशिया उसकी जैसे लगेगी, और उसकी वाइवेसिटी की वजह से आपको इग्निशिया कई बार फॉस्फरस भी लग सकती है। मान लो इग्नेशिया का पति कहीं और काम कर रहा है, हफ्ते में एक बार आ रहा है, तो इग्नेशिया सोशली इतनी सबके साथ में घुली हुई, क्योंकि शादी में जाएंगी मतलब वो पति के सारे फर्ज निभाएंगे ना। सामने लो सास ससुर बूढ़े हो गए, तो फिर वो सास ससुर के रिश्तेदारों की शादियों में जाना, उनके सारे किसी की मृत्यु हो गई तो उनके रिचुअल्स में जाना, ये सब करेंगी। तो वो अपने को लगता है कि ये इतनी सोशिएबल है, सब में घुल मिल गई है, तो फिर अपने को कई बार इग्नेशिया फॉस्फरस लगती है। अगर आप सच में किसी रेमेडी को यहां से समझ रहे हो, तो आई वुड टेल यू, इफ यू हैव phosphorus cases which are not responding, you think about ignition. Think about ignition. Most of the phosphorus, most of the ignatias are confused by homeopaths as phosphorus. बिकॉज हम लोग सुपरफिशियल देखते हैं। आप इस चीज को देखो, मेरे पास में एक इग्निशिया पेशेंट था, स्टिंकिंग रिच, मैरिड टू एवरेज मैन, मैरिड टू अ डॉक्टर, ओके, बिकॉज शी सेड कि सर मेरी फैमिली में तो मेरे को किसी बिजनेसमैन के घर में दे देते, घर में बन जाती, और मुझे वैसे नहीं रहना, वो इमोरल लोग हैं सर, उनके पैसे वैसे, वो मुझे वो करप्शन का पैसा नहीं चाहिए, तो मैं इसकी बन के। बट यहाँ पर ये लड़की, ठीक है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती थी सर, इसमें एक्सरसाइज हो जाती, मेरी पैसा भी बच जाता है। तो ये इसकी दो बेटियों को स्कूल से लेकर सब चीजें, इसके सास ससुर तक का सबका ध्यान रखती।
यहां तक कि उसका ससुर बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होने के बावजूद शी वाज टेकिंग केयर ऑफ द ससुर एंड हस्बैंड वुड कम वंस अ वीक सैटरडे संडे समटाइम्स संडे this girl is taking care of the whole thing not taking any help from her parents not taking any help अब वो बोलती कि सर वो लोगों के पास बहुत पैसा है वो अपने मायके वालों को वो लोगों के पास बहुत पैसा है ऐसा बोलने लगी है इतनी डिलीजन मैरिड इतनी वो क्या है मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे वो वाला और फिर वो है ना सास सास क्या है ससुराल गेंदा फूल वो भी वैसा ही है आप देखो वो मैंने उस पे आप लोग यूट्यूब पर जाकर देखना मैंने गजल उस पे लिखी थी टूट गए हम रिश्ता न टूटने दिया हमने इस तरह हर रिश्ते को मुकम्मल किया आप देख मैं भूल गया हूँ गजल को आप वो देख लेना दैट इज इग्नेशिया और आइडियलिस्टिक तो आपको पता है आदर्शवादी तो वो आदर्श बिकॉज मॉरल्स है ना सेंसिटिविटी मॉरल्स अब देखो सेंसिटिविटी मॉरल्स आइडियलिज्म एंड डिल्यूजन मैरिटी ये तीन को आप मिला दो तो आपको एकदम आदर्श और उसके बाद डेलिकेसी फीलिंग डाल दो तो आदर्श पत्नी मिलेगी ओनली थिंग इज द हस्बैंड हैज टू बी लॉयल टू हर जिस वक्त उसको पता चला कि भाई ये कर रहा है तो फिर उसकी फैमिली देन शी विल ब्रेक देन शी विल ब्रेक अदरवाइज आइडियल वाइफ एवरीथिंग right from the physical needs to uh, the social needs to everything she will take care of that. Okay, of course there are hypocrites we have Ignatia so we have, but since now we are discussing about idealist Ignatia I am telling you this side of the Ignatia inshallah कभी वक्त मिले और मैं फिर सजे अपनी तो फिर अलग टाइप ऑफ Ignatia के बारे में बात करेंगे आज के लिए इतना ही करम जी हम पे करम कीजिए लेक्चर खत्म Thank you, Dr. Liaquat, sir, for your valuable input as always. And thank you, Dr. Mansi, for the wonderful session. Thanks for sharing your knowledge. We appreciate your time and effort. And thank you all for joining us and participating today. Have a lovely day. Thank Thank you. you. This is first time of Karam. I I know. really appreciate her anchoring the whole show. Very nice, Karam. Inshallah, Thank in you. my poetry show also, if I come across to USA, you will host the show, inshallah. Sure, definitely. Okay. Thank चलो you. एंड वन मोर थिंग जाते आते सबके लिए प्लीज पुणे में मेरा शो है संडे के दिन आइए पोएट्री का शो टिकट करीब करीब बिक चुकी है कुछ 8-10 टिकटें बची है तो जिनको आना है एंजॉय करना है आइए संडे की शाम बनाइए मजा आएगा आपको 5 to 7 खराड़ी द प्लैटिनम टावर्स पुणे The show name is Kavita Ghazal and Bariska. You can contact Mansi, Pranita, anybody from PHF. They'll tell you where the show is. Thank you so much. Good night. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Mansi. Thank you, Garam.